Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444. 2342-1050 and 2331-0464. For callers from outside Delhi, please put the prefix 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastava and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद वैभव। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का और हम सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज सोमवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना न भूलें। आज चर्चा के लिए और आप सभी के प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Absolutely, Sparsh. We begin with the headlines. India's equity benchmark indices rallies to record high. Sensex surges 98 points. Nifty closes at 25,383. Oil prices raised amid expectations of U.S. interest rate cut. Brent crude up 0.84% at $72.81 per barrel. And in the bullion market, gold is trading up at 73,850 rupees. Silver gains 630 rupees. घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने आज रिकॉर्ड स्तर को छुआ। सेंसेक्स 98 अंक बढ़ा और निफ्टी 25,383 पर बंद। अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की संभावना के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.84% बढ़कर $72.81 प्रति बैरल पर पहुंची और सराफा बाजार में सोना तेजी के साथ 73,850 रुपए के स्तर पर पहुंचा और चांदी की कीमत में 630 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने आज दिन के कारोबार के दौरान रिकॉर्ड स्तर को छुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 98 अंक यानी 0.12% के लाभ के साथ 82,988 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 25,383 पर रहा। बात करें बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक की, तो मिड कैप में सपाट माहौल देखने को मिला और स्मॉल कैप में 0.3% की वृद्धि देखी गई। India's equity benchmark indices rallied to record high with the BSE mid-cap index ending on a flat note, while small-cap index was up by 0.3%. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, surged 98 points or 0.12% at 82,988, and the NSE Nifty was up 27 points at 25,383. In the Sensex index, 15 out of 30 companies registered loss. The top gainers today were NTPC, which gained 2.44%, JSW Steel surged 1.73%, and L&T jumped 1.35%. Conversely, Bajaj Finance dropped 3.36%, Hindustan Unilever lost 2.3%, and Bajaj Fin Services slipped 1.89%. In sectoral indices at the BSE, 5 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, FMCG slipped 0.51%, telecommunication plunged 0.44%, and services dropped 0.21%. In top gainers today, utilities gained 1.97%, power was up by
1.93% and metals surged 0.65%. The overall market breadth at the BSE was negative, as out of 4,201 companies, shares of 2,151 companies advanced, 1,957 declined, and 93 remain unchanged. And we'll do a lot of question and answers on these stories and many more, but on this edition of Market Month, we have our first caller from Kolkata, Athanu Saha. Athanu ji, स्वागत है आपका शो में. अपना सवाल पूछिए. Good evening. Good evening to everybody. Happy Tools Festival and all other festivals of our globe. Sir, my question in that how startup boost up our mediclaim insurance business in India, mainly group insurance and other insurance. Is it possible chance for them, though who are who are boost up our mediclaim insurance and for matter of health concern? Thank you, sir. You see, medical insurance is given by insurance companies, and like life insurance engages large number of individuals in terms of promoting their policies and connecting people across the country. Large number of people feel employed with the LIC framework. Similarly, is the case of medical insurance, which was not so popular before, in the sense that now people feel that it is important to take medical coverage given the high prices and the medical costs which have gone up tremendously high, whether it is small operations or large operations. So the consciousness of people for healthcare, specifically after COVID and others, have gone up, and hence the surfacing of smaller companies which are helping promote some of these products which insurance companies give is there. But as such, startup program has nothing to do with the insurance sector per se. The startup program functions in almost all sectors in the country and is more, point to new tech areas like the batteries, the EVs framework, even the defense equipment structures, drones and stuff like that, instead of medical insurance per se. जी, और हमारे साथ अगले कॉलर जयपुर से जुड़ चुके हैं जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. सवाल पूछे अपना. सर, मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति एक घटना अच्छा है हम लोग के लिए या बढ़ना अच्छा है? देखिए जी, जो मुद्रा स्मृति होती है वो लेवल होता है कि कितना आपका मनी फ्लो कर रहा है. हमारी जो मुद्रा स्मृति है वो M3 के हिसाब से देखी जाती है, एक मनी सप्लाई जिसे हम कहते हैं. और वो जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, वो देखता है कि कितना पैसा मार्केट में है, कितना बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए, लिक्विडिटी कितनी मेंटेन होनी चाहिए. अगर लगता है कि किसी वजह से लिक्विडिटी बढ़ रही है तो वो टेक्निकल लगाता है, जिससे वो चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो पैसा मार्केट से खींचा जा सके. जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, उस तरीके से मार्केट जो है फिर वो वापस सेविंग्स करने लग जाती है और चीजें करने लग जाती है. वो मुद्रा समिति कंट्रोल करना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उसका साइड इफेक्ट जो होता है कंजम्पशन पे भी होता है. क्योंकि अगर आपको अच्छे रेट नहीं मिल रहे तो आप उसको कंज्यूम करेंगे, खर्चा करेंगे, खरीदारी करेंगे, वो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाएगा चीजें, बिकॉज सामान मार्केट में कम है. तो इसलिए मुद्रा समिति को कंट्रोल करना जरूरी है रिजर्व बैंक के लिए. और इसीलिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व के सारे दुनिया के देश मुद्रा समिति को देखते हैं और हिंदुस्तान में M3 को सबसे ज्यादा देखा जाता है. Sir, from Jaipur we go over to Delhi, from where we have our next caller. Yogesh Sharma ji is on the line. Yogesh ji, स्वागत है आपका मार्केट मंच में. अपना सवाल पूछें. हाँ जी, मेरा सवाल सर ये है कि मार्केट में जैसे रोज नया हाई बन रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे रिटेल निवेशक ये जान पाए कि क्या कोई बबल या फ्रॉड मार्केट में बिल्डअप होने लगा है धीरे धीरे करके? एक सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे स्टार्टअप बहुत ज्यादा आजकल चलन में है, तो क्या रिटेल निवेशकों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के का कुछ तरीका है या उससे बचना चाहिए जो छोटे निवेशक हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि कैसे हम नाप सकते हैं, भाप सकते हैं कि कोई ऐसा बबल आ रहा है नहीं आ रहा है. देखिए, बबल का क्या मतलब है कि कोई एक चीज अपने से ज्यादा जितना ग्रो होनी चाहिए उससे ज्यादा ग्रो कर रही है. तो एक तरीके से कैंसर ग्रो करता है शरीर में, वो कैंसरस ग्रोथ हो रही है किसी चीज में. जब कोई चीज बढ़ रही है उसका कोई कारण होना चाहिए. या तो कोई सेक्टर में ग्रोथ आई, इंडस्ट्री में ग्रोथ आई, कोई सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी आई, या बाहर से कोई निवेश ऐसा बड़ा आया कि वो एकदम से वो सेक्टर को ग्रोथ की तरफ लेके जाए. अगर ऐसी कोई चीज नहीं है और फिर भी वो बढ़ती नजर आ रही है, इसका मतलब उसमें चिंताजनक बात है. दूसरा, जो वॉलिटिलिटी होती है, हम एक फैक्टर होता है जिसे कहते हैं वॉलिटिलिटी. तो अगर वो वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है
मार्केट के अंदर, तो उससे भी एक नॉर्मल निवेशक को जो रिस्की नहीं करना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट को, उनको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। जो रिस्की वाले होते हैं, जिनको रिस्क से चिंता नहीं होती, वो डूबने डरते नहीं हैं, उनके लिए वो वॉलेटिलिटी अच्छा एक इंडिकेटर रहता है। पर जो लोग डरते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ये देखें कि वॉलेटिलिटी बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो उसमें उनको निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बबल में क्रिएट हो सकती है। जहां तक आपने स्टार्टअप्स की बात करी, स्टार्टअप जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, उसमें हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता है, बिकॉज पहले काफी साल पहले तक लिस्टिंग के लिए 1 साल का रिक्वायरमेंट होता था, रिस्ट्रिक्शन होता था। अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप्स आ गए हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, तो रिस्ट्रिक्शन मार्केट्स ने खत्म कर दिया। बहुत कम समय के अंदर आप लिस्ट कर सकते हैं, तो एक निवेशक को पता नहीं चल पाता कि ये सही है गलत है। बट फिर भी आपको ये देखना चाहिए कि जो उस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, सेगमेंट में ग्रोथ हो रही है, और वो स्टार्टअप कितने टाइम से कर रहा है, क्या प्रोडक्ट लेके आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत आपको अपना भी इंटरनल रिसर्च करना पड़ेगा कि ये चीज आगे मापदंड पे निकल रही है तो कर रही है, तो उसमें निवेश करें। और देखिए, कभी भी बिजली कड़क सकती है, तूफान आ सकता है, तो आप ये कहें कि मार्केट कल को फॉल नहीं करेगी, वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। कोई इसमें यंत्र या शंत्र नहीं यूज कर सकते कि आपको प्रेडिक्ट करे कि कब बढ़ेगी और कब घटेगी। जी, बाजार पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुपए पर एक बार नजर डाल लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी बदलाव के साथ 83 रुपये 89 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 100.72 पर कारोबार कर रहा था। इसी के साथ हमारे साथ थाने से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। गुरुनाथ जी, आप अगर हैं तो सवाल पूछिए। हेलो गुरुनाथ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार, अमन सर को भी नमस्ते। नमस्कार सर। सर, अभी जो फेड रिजर्व इनकी जो मतलब ब्याज दरों में क्या कटौती करते, क्या इसका मतलब असर हमारे मार्केट पे देखा जाएगा? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये अपना जो रुपये डेफिसिट के बारे में है। सर, हमारा जो रुपया है वो जो डॉलर के मुकाबले जो एक साल भर में तो कम से कम 1% तो गिरा होगा। सर, हमारा मतलब जीडीपी रेट मतलब फास्ट ग्रोइंग करने वाली हमारी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो सर, ये मतलब हमारा रुपये मतलब ट्रेड में जो मतलब डिफरेंट देखा जाता है, ट्रेड में मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से हमारी जो करेंसी कमजोर होती है, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा कमजोर करेंसी हमारी देश की है और हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर, ये क्या मतलब आगे चल के मतलब हमारी रुपये मतलब से सरकार कोई कदम उठाएगी कि हमारे रुपया मजबूत हो जाए? थैंक यू सर। आपने बड़ी सारी चीजें पूछी, बड़ी अच्छी पूछी। पहली बात तो जो फेड रेट कट है वो होगा या नहीं होगा, वो अभी भी आशंका है। आप देख सकते हैं 4 साल से वो गुणगान गाए जा रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब इलेक्शन से पहले भी उन्होंने धमकी देने के तरीके से दोनों कंटेंडर्स को कहा है कि हम कम करने जा रहे हैं, पर वो कम होगा या नहीं होगा, बिकॉज वहां पे पावल साहब रहेंगे भी नहीं रहेंगे 2-3 महीने के बाद, वो भी नहीं पता है। तो इसलिए वो अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड खेलना चाहते हैं ताकि वो बने रहें। बट इस समय अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से अपनी मुद्रास्फीति को और चीजों को नियंत्रण में लाए, और स्पेशली इन्फ्लेशन को नियंत्रण में लाए, जो उनके हाथ से बिल्कुल बाहर है। और वो इसीलिए बाहर है कि ट्रम्प के दौरान जब कोविड हुआ उसके बाद उन्होंने मिठाई की तरह पैसा को बांटा है। दूसरा जो आपने कहा हिंदुस्तान के एक्सचेंज रेट के बारे में या मुद्रास्फीति के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत सुदृढ़ है, सक्षम है, और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो काफी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। पर देखिए, अगर कोई हंसमुख है, प्यार से बात करता है और अच्छे से व्यवहार करता है, इसका मतलब ये उसको कमजोरी ना देखा जाना चाहिए। एक हमारा जो देश है सबसे बहुत ज्यादा जनसंख्या में इस समय जो है नंबर 1 की तरह से जनसंख्या में है, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो वो हम लोग हाथी की तरह मूव कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, चाहे वो ट्रेड मार्केट हो। तो इसलिए हम जो एक छोटा देश जिसमें ट्रेड जैसे सिंगापुर देश है, उसकी हम ग्रोथ को देख के हम ये सोचें कि हम वैसे ग्रो कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं। दोनों के अंदर बड़ा अंतर है। पर हमारी क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ की वजह से जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो हम जीडीपी की बात करते हैं, तो इसलिए वो जो स्ट्रेंथ हमें मिल पा रही है भारत सरकार को भी भारत के अंदर आपके और मेरे काम करने की वजह से मिल पा रही है, और वो जो स्ट्रेंथ है वो हमारे रुपए को मजबूत करेगी। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखना है
है कि किस तरीके से हम उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ लेके जाएं, बिकॉज जो रिजर्व बैंक में बैठे होते हैं, चाहे गवर्नर साहब हों और डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसको हम स्ट्रेंथन करने दें या ना स्ट्रेंथन होने दें। ट्रेडिशनली पिछले 40-50 सालों में हमारी पॉलिसी रही है कि रुपए को वीक रखा जाए, ये देखते हुए कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस कर सकें और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल सके। ये नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान एक समय पे ऐसा देश था जहां से कोई भी चीज जाती थी तो कहते थे जिस दाम पे आई है खरीद लो, क्वालिटी होनी चाहिए सामान के अंदर। उस समय दुगना, 3 गुना, 4 गुना, और लोग घोड़ों गाड़ियों को लेके जाते थे दुनिया भर के अंदर, जो सिल्क रोड पुरानी मानी जाती है उस पे जाते थे। तो अगर आपका माल अच्छा है, चीज अच्छी है, तो कोई भी दाम खरीदेगा। और अमेरिका अगर अपने डॉलर को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, वो इसीलिए है कि गिरना नहीं चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ लोगों को समझ आ रही है, पर पूरी तरह समझ नहीं आती डिसीजन मेकिंग में। मेरे विचार में जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, करीबन $66 बिलियन पिछले 6 महीने में हिंदुस्तान में आए हैं। इस समय हाईएस्ट रिजर्व रेशियो पे है, पूरे विश्व के अंदर चौथे नंबर पे है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। हमारे चाहे जीडीपी फिगर लें, चाहे इन्फ्लेशन लें, वो कंट्रोल्ड है, चाहे और चीजें लें, सब कुछ कंट्रोल्ड है। इसलिए हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा, अगर हम प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं, इसका मतलब ये है कि हम काफी सुधरे हैं और स्ट्रांग हैं। It's a very important point, Aman sir, that you've made, and I think people should be realizing the fact that the policy making for especially governing the currency in our country, that is the Indian rupee, has to be in a sense that we have to not just take care of our imports and exports, but we also have to take care of various global scenarios. Talking about the exports that you just mentioned, the current government, the historic third term of the Honorable Prime Minister Shri Modi, they've completed more than 3 months now, and his first decision, and I'm talking about one particular sector that has been extremely important, not just for sustainability, not just for our food security, but also for exports, and that is the agricultural sector. His first decision was to giving out 20,000 crore rupees to 9.3 crore farmers in the 17th installment of the PM Kisan Nidhi. Now, 109 new varieties of seeds and crops have been introduced. Agricultural Infrastructure Fund has been given an impetus of 14,000 crore rupees. Mission Mausam has been introduced. Mission Aquaculture has been introduced. How exactly is the government seeing the agricultural sector? And do they feel that the agricultural sector can still hold the backbone of the economy in so many more ways that we just see it? Because we usually now just compare it with the tertiary sector and feel that the agricultural sector is no more anymore. I think you raised a very critical point. The agriculture sector is the real backbone of this country. And in fact, it is considered to be backbone from various economies across the globe. Unfortunately, many of them have not been able to contain it, and only about 4 to 5%, some places only 3% of the total population is engaged in agriculture, like in case of Europe or in case of some of the other developed countries. And that's where their biggest risk for them is, because they're importing most of the agriculture food, which is a cause of major security threat for them if anything happens, like a war or tsunami or something like that happens. India, fortunately, is blessed to have still roughly about 60 to 65% of population, data varying from agency to agency, engaged in agriculture, direct agriculture, and roughly about 73 to 75% in agriculture plus agro-based industries, which has been promoted by the government in the last 10-15 years, and more so with this government coming in, and the agriculture, the Kisan space coming as part of the budget. As you rightly pointed out, even recently in 3 months, our Prime Minister has given out large number of facilities in terms of facilitating, whether it is cold storage, whether it is question of poultry, because that's also part fisheries. Absolutely, of course. You see, we also suggested long back about Kisan Credit Card. That has also taken a piece as an institution. We suggested long back, and that is coming strong. Now, what is important is that agriculturists need to also look at the fact that the government is pro farmers and not against. Like we saw the previous cases when the Kisan law was being created, to give them a platform to actually take agriculture on the GEM platform, which is a government platform to to promote and sell agriculture producers globally, which did not happen primarily because of the fallout of the way the act was projected by some of the other parties. And that, I think, now
for that act to be in place or the precedents in those acts to be in place, that is not required. The government can actually bring in through NABARD and through other agencies, Ministry of Agriculture, and they are doing that. And that is in the interest. You see, for the first time, they're registering for the last 3 years, 4 years, agriculturists. They're giving a unique ID to them. So that the benefit which needs to go to the small farmers does not go to the rich and influential farmers who actually don't need that credit benefit at all. So this is where the government is taking a proactive role in terms of inducing that factor and also integrating them with the GEM and a couple of other networks so that people can actually sell not only in India but across the globe, because organic was something which became a restriction for India because fertilizers could not be imported in the 80s and the 90s. High-tech equipment like tractors and others which are used for feeding and done across the globe could not be done because of low financing possibilities, despite NABARD's activities which were there. We are left with organic, and that is something which is selling at 4 times, 5 times, 6 times the normal price, and which we are seeing in northern India, specifically Punjab and Haryana, and some parts in south only, are benefiting from that being sold across the globe, which is earning a lot of foreign exchange also. A lot of foreign countries have tied up with these farmers in terms of producing and taking it to their country. Now, if the farmers understand what the government is trying to do, I think we will see a boost, because that is the real backbone. Whether we look at industry, the feeder industry is still agriculture. Whether we look at you and me eating food, it is still the agriculture. So that is the Kisan's, health, wealth and his prosperity is key ingredient for Indian economy to really grow. So basically the Annadatas have been put fully true. Yes, it is in the focus and I'm happy that they are there. जी, आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। प्रमुख एशियाई सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। हांगकांग का हैंगसेंग 0.33% के फायदे में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.22% की वृद्धि देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 0.24% की गिरावट देखी गई और लंदन का फुत्सी 0.05% नीचे रहा। वहीं फ्रांस का कैक 0.04% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। और हमारे साथ गुरुग्राम से केशव जुड़ चुके हैं। केशव जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा कुछ अमाउंट एफडी के थ्रू मैच्योर हो चुका है सरकारी बैंक में। तो सरकारी बैंक में कोई स्कीम तो है नहीं, वो ये कहते हैं कि आप इसको रिन्यू करा लीजिए। हमने प्राइवेट निजी बैंक की जानकारी ली, वहाँ एक नई स्कीम उन्होंने हमें बताई कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है और एक इनकी पास स्कीम है। स्कीम ये है कि हमारे पास आप इंटरेस्ट भी जगह मिलेगा और 1 साल की 12 साल की एक स्कीम है। बैंक लोन देता है, बचत खाते खोलता है। ये लोन के अलावा ये 2 साल 12 साल की इनके पास स्कीम है। 2 लाख जमा कीजिए और 80,000 रुपये हर साल आपको वापिस मिलेगा। 12 साल तक हमें 2 लाख देना है। 24 लाख रुपये इनके पास जमा हो जाएंगे तो 25 साल के बाद हमारे को वो मेच्योर होने पर हमें स्कीम देंगे। और सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, यंग एज वालों के लिए स्कीम है। तो इसके बारे में कंफ्यूजन है, हमें कहाँ से अच्छी से जानकारी मिलेगी, आप बता पाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी। इनकम स्कीम्स होती हैं जो आप थोड़ा थोड़ा जमा कराते हैं। अगर आपने देखा हो तो पोस्ट ऑफिस केस में भी होती थी, मंथली इनकम स्कीम्स होती थी। आप जमा कराते रहिए, वो इकट्ठा करके आपको फिर बाद में देते हैं। इसी के से ये स्कीम्स होती हैं। अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्कीम्स अलग अलग पीरियड के लिए होती हैं। अब ये आपकी एज के ऊपर फैक्टर करता है। देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन की तरफ जा रहे हैं, 50 साल 60 साल 70 साल के आसपास हैं, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए। ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो 2-3-4 साल के अंदर आपके पास आता रहे या उसमें भी कुछ रिटर्न आपको मिलते रहे। जैसे फिक्स डिपॉजिट्स भी होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं जो टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपको हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स आउटपुट आती रहती है। तो वो पैसा तो जरूर अटका हुआ है 6-7 साल के लिए, बट आपको आउटपुट अभी मिलता जाएगा। उसको दोबारा निवेश करना चाहे नहीं यूज करना ना करें, नहीं तो आप उसको पैसे को यूज भी कर सकते हैं। आप यंग हैं, आपके पास कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, उसमें से कुछ पोर्शन आप लगा रहे हैं इसमें, इस स्कीम्स में भी लगा सकते हैं जिसमें आपको निकल के आएगा। पर एक चीज जरूर समझिएगा कि कुछ स्कीम्स जो होती हैं इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे पहले LIC में देखा जाता था कि आप 3 साल का रोलिंग प्लान बना लें, 4 साल का रोलिंग प्लान बना लें, ये गलत स्कीम रहती है। उसमें आप प्रीमियम बहुत ज्यादा देते हैं और आपको मुनाफा बहुत कम होता है, जबकि पैसा आपके सब आ जाएगा। पर आप नहीं समझ पा रहे कि प्राइम पर्पज इंश्योरेंस का होता है आपकी हेल्थ कवरेज करना या लाइफ कवरेज करना। आप उसको एक अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो गलत चीज हो गई है। तो इसलिए मेरे विचार में अगर न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करिए, पपाया को राइप करने के लिए इस्तेमाल नहीं करिए, ठीक है ना जी। इसी तरीके से जो है आप अपनी जो स्कीम है ऐसी स्कीम लीजिए जो आपको इन्वेस्टमेंट दे रही है, जहां निवेश कर रहे हैं जो पैसा दे आपको, और ये चीज सारी बैंक आपको क्लियर करेंगी। इवन सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप जाके लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में, सरकारी बैंक में भी है। और एक चीज और समझ लीजिए, आपके पैसे के अंदर 5 लाख रुपए तक इस सरकार ने, पहले 1 लाख रुपए था, आज से 8-10 साल पहले 5 लाख रुपए कर दिया है उसको। 5 लाख रुपए सेफ है आपका किसी भी फिक्स डिपॉजिट में, किसी भी अकाउंट के ऊपर। वो एक, यानी कि एक इंडिविजुअल का, अगर आपके पास 10 अकाउंट है तो 10 के 10 अकाउंट में 5-5 लाख रुपए सेफ है। तो वहां तक आप किसी भी बैंक में निवेश करके कर सकते हैं। उसका आपको पूरा सिक्योरिटी भारत सरकार अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू किसी भी बैंक से प्रोवाइड करती है। And moving over to our next story, oil prices rose in Asian trade on Monday amid expectations of a U.S. interest rate cut this week. The gains were capped by persistent demand worries and weaker China data. Still, nearly a fifth of crude oil production and 28% of natural gas output in the Gulf of Mexico remain offline in the hurricane's aftermath. The Federal Open Market Committee, FOMC, is expected to make a decision during its September 17th, 18th meeting. Fed fund futures show investors are increasingly betting the U.S. Central Bank will cut by 50 basis points to BPS instead of 25 BPS. Lower interest rates typically reduce the cost of borrowing, which can boost economic activity and lift demand for oil. However, analysts are concerned that an aggressive rate cut of 50 BPS could signal underlying recession worries, which would be a bane for demand. Brent crude is up 0.84% at $72.81 per barrel. US WTI crude is also up 0.01% at $69.34 per barrel. Amongst given the weak global cues that we are continuously getting and the uncertainties or the vagaries, as I would like to call them, in the global markets as we are seeing, looking at India's perspective, the way we form our bonds with other countries, the way we are balancing or doing a balancing act, walking the tight line in the middle, how important are we in this global scenario when it comes to not just having a buffer of agriculture, like we have just discussed, which the other countries don't, and also with the positive condition that we are in regarding oil or crude as we are seeing? You see, the government has already taken up steps, and specifically after the Iraq's fall in the 1990s, Government of India was stressed on where to purchase our oil. And then we also saw the debacle of 2007-2008, after which a lot of problems came up in terms of oil. And then we saw the ruble thing after the Ukraine-Russia war took place. So these are three or four major incidences which have happened in the last 25 years, where the Government of India has tried to build up structures which are shielding itself for crude oil debacles. One is that earlier they were totally dependent on the Saudi Arabia and the Arabic region, Iraq and others, one or two countries where they were importing around 80% of our oil needs, which actually had been reduced, and now we are diversified from all over the country. So crude has been taken. Secondly, the EV investments or the electronic investments and solar panels is also one of the major movements which is helping us do our dues. जी, और सोने और चांदी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.04% बढ़कर 73,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.71% बढ़कर 89,810 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.02% घटकर 73,503 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.7% बढ़कर 89,802 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। अमन जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर।
Before we close, a reminder of the headlines. India's equity benchmark indices rallied to record high. Sensex surges 98 points. Nifty closes at 25,383. Oil prices raises amid expectations of U.S. interest rate cut. Brent crude up 0.84% at $72.81 per barrel. And in bullion market, gold is trading up at 73,850 rupees. Silver gains 630 rupees. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, namaskar. Market Mantra.